उसमें शायद एक रिपोर्ट तो नहीं है. In speed labs there is an option. If you find any wrong question, you can report. आगे आ जाओ. Yes. So sound, I think we discussed sound. We discussed wave. Wave is a disturbance which propagate energy in the direction of propagation. Sound is a type of wave. So wave is a disturbance which propagate energy. Then we classified wave into no. We mechanical and electromagnetic wave. Mechanical wave which are produced in a medium. Electromagnetic wave जिसके लिए medium की जरूरत नहीं है because they propagate in the form of electric as well as magnetic field. Ushi? Yes, sir. You probably missed last class? No, last to last class. You attended last class, no? Yes, sir. Okay. You very nice. What is the mechanical? What is mechanical wave, Oshi? What is a mechanical wave? Quick. क्या सर? What is a mechanical wave? सर वो वाली वेव जो एनर्जी मीडियम के थ्रू भी ट्रांसफर करती है. वो वाली wave जो medium के through transfer होती है. Okay, the waves which are produced in a physical medium, right? And what properties the medium should have to propagate wave? Yes. Inertia and elasticity. Inertia and elasticity are the two properties that medium should possess. Shrey, example of mechanical wave. Give 3-4 examples. Example of mechanical wave. Sound wave, water Sound wave, ripple, water ripple, or oscillating string, cyclone. They all are example of mechanical wave. Electromagnetic wave. Jayesh, what is electromagnetic wave? An electromagnetic wave is formed by the acceleration of a charged particle. By the acceleration of a charged particle in which electric field and magnetic field changes periodically. Right? Oscillate periodically, medium is not required. Example of electromagnetic wave? Iska. Frequency. So the modes may produce Yes. infrared. Infrared, visible light, X-ray, gamma rays, they all are electromagnetic wave. हमने पूरा chapter पढ़ रखा है last. So yes. आगे बढ़ते हैं. Wave को propagate करने के लिए medium चाहिए, that is mechanical wave. If it does not require any medium, that's electromagnetic wave. Another classification was longitudinal and transverse wave. Industry, what is longitudinal? This is another classification. Can longitudinal and transverse. You see what is longitudinal wave? नहीं ये नहीं बस define करना है. You have to express in words, not by sign language. Yes. Longitudinal. Shrey, what is longitudinal wave? Kabir, what is longitudinal wave? अच्छा बोल रहे हो? हाँ बोलो. Yes, Shrey, in which? Sir, the medium particles oscillates in the direction of wave. When the medium particle oscillates in the direction of wave, an example is Sir, it's sound wave. sound wave. And longitudinal wave propagate in the form of compression and rarefaction. Kabir, what is the distance between two compression is called? Kabir? Sorry, गणपति घर पे सर इसलिए गेस्ट आए थे. सब wavelength. Wavelength, yes. तो तुम गेस्ट के साथ हो या क्लास में हो? सर गेस्ट भी देखना पड़ेगा ना सर गणपति घर पे. कुछ तो लोचा है.
Yes, the distance between at compression pressure is maximum or minimum? The at compression pressure is maximum. I think you missed last class, but ये 9th वाला ही कुछ हम अभी रिवाइज कर रहे हैं. Compression पे pressure maximum होता है minimum? Riddhi, Maximum. Yes, sir. at compression pressure is maximum or minimum? When we speak, air Sir, get compressed, Sir, pressure it is should be maximum. maximum. Yes, when it get compressed, pressure is maximum. At the rarefaction, maximum means एक तो atmosphere का pressure है ही, plus जब हम बोलते हैं तो हम कुछ pressure लगाते हैं, so that get added. At compression, maximum pressure is maximum. At rarefaction, the pressure is reduced. It has a minimum pressure. Right. Transverse wave definition. Tejasvi, what is transverse wave? Transverse wave. The wave in which The particles vibrate the medium particle oscillate perpendicular to the direction of wave. Example. Shrey, what is the example of transverse wave? Shrey, example of transverse wave? Electromagnetic waves. All electromagnetic waves are transverse wave. Okay, more mechanical में example. Oscillating string. All electromagnetic wave में वो X-ray भी आ गया, right? Oscillating string is a transverse wave. Transverse wave में medium के particle perpendicular होते हैं. राइट एक और तीसरी तरह की वेव होती है बट वो अभी अपने मतलब की नहीं है दैट इज कॉल्ड मैटर वेव ठीक है सो साउंड वेव इज द वेव व्हिच प्रोपगेट्स इन अ मीडियम और मीडियम में प्रोपगेशन के लिए चाहिए होती है इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया सो देयर इज अ जनरल फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एनी मीडियम जो हमने वैसे क्लास 9th में भी पढ़ रखा है द फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ नहीं वो तो ठीक है दैट इज जनरल फार्मूला v is equal to under root of e by d where e is called elasticity of that medium or the modulus of elasticity of that medium and d is the density. This is the general formula depending upon in which medium the wave propagate the elasticity will change. So Newton proposed that the sound propagation is isothermal at constant temperature. At constant temperature, elasticity is equal to pressure. So Newton का formula था. This is formula for speed of sound in gas. ताकि दोबारा गलत ना करो. Speed of sound in gas according to the Newton is equal to root of P divided by D where P is pressure. Because isothermally या जब भी कोई गैस पास होगी किसी भी गैस में साउंड पास होगी हाँ but Newton proposed that sound propagation is isothermal during the sound propagation in the medium temperature remains same. Temperature remains constant, but this was wrong. ये न्यूटन ने जो बोला था, this was proved wrong by Laplace, and Laplace corrected this information. Sound propagation is so fast that there is no heat exchange with the surrounding. Sound propagate करते टाइम ना तो heat देती है और ना heat लेती है, उसको बोलते हैं adiabatic. जब temperature constant रहता है, then that is called isothermal. टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो बाहर निकालनी पड़ेगी और अगर हीट कम हो रही है तो बाहर से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस ठीक है लाप्लास करेक्टेड दैट साउंड प्रोपगेशन इन
sound propagation in air or in gas is adiabatic. Adiabatic का मतलब no heat exchange with the surrounding. Such processes are called adiabatic process. और वो इसलिए है क्योंकि speed of sound is very fast, 330 meter per second approximately in air. बाकी और gases में और ज्यादा हो जाती है. नो हीट एक्सचेंज, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कोई भी हीट नहीं आती है साउंड के प्रिपरेशन में उस गैस में, ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा. सो उसके लिए जब हम यूज करेंगे दिस बल्क मॉडुलस और इलास्टिसिटी, दैट शुड बी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डिवाइड बाय डेंसिटी एंड व्हिच कम्स आउट गामा टाइम्स पी बाय डी, वेयर गामा इज अ कांस्टेंट फॉर अ टाइप ऑफ गैस. सारी मोनोटॉमिक गैस के लिए इसकी एक फिक्स वैल्यू है. All diatomic gas it is a fixed value. Monatomic gas जैसे helium and neon. Helium is He, neon is Ne. Diatomic gas like oxygen, nitrogen, hydrogen उनके लिए एक वैल्यू होती है. P is pressure and D is density. क्लोरीन भी diatomic gas है, but क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में भी होता है. और P अपॉन D का फॉर्मूला RT अपॉन MB हो जाता है. दिस इज अनदर फॉर्मूला. R is a constant just like capital G is gravitational constant. Similarly R is a gas constant. 8.314 joule per Kelvin. Yes. This is actually gamma. This is alpha, beta and gamma. Gamma constant लगाया क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में इलास्टिसिटी इज गामा टाइम्स प्रेशर. और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, सो ये प्रूव किया कि हमने पहले मेजर किया साउंड की स्पीड और फिर न्यूटन के फॉर्मूले में रखा, दोनों में डिफरेंस था. फिर लाप्लास के फॉर्मूले में रखा और मैच किया, इट केम आउट टू बी सेम. So actual formula is Laplace formula, which is the gamma into RT by M. R is gas constant, T is temperature of the gas. It should be in Kelvin. और capital M क्या है? Molar mass या molecular mass. ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? तेजस्वी, what is the molar mass of oxygen? ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 16 is atomic number, atomic weight. Yes, that's for one atom. ऑक्सीजन गैस में O2 होगा, so there are 2, that's 32. हाइड्रोजन का 2, H2. नाइट्रोजन का 28. Accordingly जब मास चेंज होगा then the speed of sound will change. ये जो फॉर्मूला लिखा है that is the Laplace formula for speed of sound. तो ये सारे साउंड के फॉर्मूले थे जो कि न्यूटन ने पहले बनाया था with the help of some dimension analysis, which proved out to be wrong because he missed out one constant, because he assumed that during the sound propagation there is no change in temperature. Right? Okay. So अगर no change in temperature मतलब हीट बाहर निकलनी चाहिए जब कंप्रेस हो रहा है. एडियाबेटिक में क्या होता है? एडियाबेटिक में जब किसी को कंप्रेस करते हैं तो वो हीट हो जाती है. जैसे साइकिल में पंप से हवा भरी है, इट बिकम हीटेड बिकॉज इट इज कंप्रेस. कंप्रेस पे हीट हो जाती है और एक्सपेंशन पे कूल हो जाती है. जैसे सब कहानी हम साउंड के लिए कर रहे हैं. दिस चैप्टर इज फॉर साउंड. ट्रांसफर थोड़ी पहले पढ़ चुके हैं, हम उसको रिवाइज करते चल रहे हैं साथ साथ. Right? This is only for sound. Sound is the longitudinal wave. Sound is a mechanical wave. अब ये जो फॉर्मूला है रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन एम, दिस इज फॉर स्पीड ऑफ साउंड वेव और स्पीड ऑफ साउंड इन गैस. एयर के लिए रूम टेम्परेचर पे यस गिवन होगी. डोंट वरी, हमें आर की वैल्यू याद नहीं करनी है. 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है?
approximately 0.61 meter per second. So in this formula बस एक जो छोटा सा confusion होता है, स्पीड साउंड की टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. टेम्परेचर न्यूमरेटर में, टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड ऑफ साउंड बढ़नी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़नी चाहिए और टेम्परेचर कम करने पे कम होनी चाहिए. साउंड की स्पीड विंटर में ज्यादा होती है एयर में या समर्स में? विंटर्स में. Summers. विंटर्स में बहुत विंटर्स में होती है. प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, दूर से भी कोई हॉर्न देगा तो विंटर में या रेनी सीजन में सुनाई पड़ता है, समर में उतना नहीं सुनाई पड़ता, which is not matching with the result. वो समझा रहा हूँ पहले, फॉर्मूले के हिसाब से तो अपोजिट होना चाहिए. विंटर में टेम्परेचर कम हो गया तो स्पीड कम हो जानी चाहिए, बट इन फैक्ट इन द विंटर और रेनी सीजन स्पीड ऑफ साउंड इज मोर. हमें दूर दूर तक की आवाजें सुनाई पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि विंटर में या फिर रेनी सीजन में जो एयर है वो मॉइस्ट एयर होती है. मॉइस्ट एयर का मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब लॉट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड. वैसे एयर में क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यस. वो तो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे छोटे. सो जो पहले केवल नाइट्रोजन या ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन का मोलर मास 28, ऑक्सीजन का 32, इसका 28 ग्राम है, इसका 32 ग्राम है. अभी वो हट गया, उसकी जगह पे क्या आ गया? वाटर. मोस्ट ऑफ इट इज वाटर विच इज 18 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास. इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे, अभी दोज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द वाटर. वाटर का मास कम है, मॉलिक्यूलर मास कम हो गया, डिनोमिनेटर कम. साउंड वाटर में ज्यादा देर ट्रेवल करती है. अब यहाँ पर ये वाटर नहीं है, दिस इज एयर बट हैविंग सम मॉइस्चर कंटेंट because of the change in effective atomic mass, or you can say because of change in the density. Density बहुत कम हो जाती है in the winter season air की. ड्राई विंटर मतलब मॉइस्चर होगी तभी ठंड है. वाटर कंटेंट विल बी देयर. वेरी गुड. सो जो बारिश वाली विंटर है, बारिश मतलब कि जिसमें वो फॉग एंड मिस्ट वो होता है, ये उसकी बात हो रही है. वैसे ड्राई विंटर में मॉइस्चर कंटेंट होता है बट इतना नहीं होता कि आपके ऊपर बरस रहा हो, तभी वो ज्यादा होगी. यस, बट ये उस वाले वेदर में, जैसे रेनी सीजन में और ज्यादा होगी बारिश में. समर में मॉइस्चर नहीं होता, अपोजिट. डेफिनेशन इज अपोजिट. ह्यूमिडिटी इसलिए कि वाटर कंटेंट बाहर प्रेशर का. तो बारिश होती है टेम्परेचर ज्यादा होता है कम हो जाता है? अभी देखो टेम्परेचर कम हो गया, बारिश हुई. अच्छा ठीक, ऐसा कुछ नहीं है बाय द वे. यस, टेम्परेचर ज्यादा है तभी बारिश होनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. टेम्परेचर ज्यादा समर्स में होता है, समर्स के बाद रेनी सीजन आता है, बट इट इज एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट. एयर में, मॉइस्ट एयर में the molecular mass reduces because of enough moisture content in the water. वाटर के अगर ये 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 में 40 to 50 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई. ये तो हो गया ना, क्योंकि m चेंज हो गया. t की वजह से कम हो रही है, m की वजह से बढ़ रही है. m का इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है. मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ गैस, हाइड्रोजन का 2. वही तो समझा रहा हूँ. पहले ड्राई एयर में सारा का सारा या तो नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, या तो 28 था या फिर 32 है. अभी मॉइस्चर आ गई और रेनी सीजन में ढेर सारी मॉइस्चर आ गई. मोर देन 50-60% एयर इज मॉइस्ट एयर, वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं. और अगर ड्यू या होस ये रही तब तो बहुत ज्यादा है. एवरीवेयर इन एयर इट इज मोस्टली दी वाटर मॉलिक्यूल्स.
जब वाटर मॉलिक्यूल आ गया तो 28 वाला या तो रिप्लेस हो गया 18 से, या 32 वाला रिप्लेस हो गया 18 से। कम हो रहा है मास, हाँ मास कम हो रहा है। एम के रिड्यूस होने से स्पीड बढ़ती है, एम के कम होने से उस मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम हो गई, और डेंसिटी कम होने से स्पीड बढ़ती है। सर जब टेम्परेचर कम होता है तो हमारी मॉइस्ट होता है, और नहीं, वो हर केस में नहीं है। सपोज अगर हमने कोई अलग से केवल हाइड्रोजन ले लिया किसी कंटेनर के अंदर और उसमें हम स्पीड देख रहे हैं, टेम्परेचर कम करेंगे तो कम ही होगा। ये तो एक स्पेशल केस है वाटर के लिए। इन दी एयर, इन मॉइस्ट एयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज क्वाइट लेस देन ड्राई एयर। डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस। मॉइस्चर में मास कम हो जाता है, इसलिए फिर वो बढ़ जाता है speed। मास कम हो गया इसलिए डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई तो स्पीड बढ़ गई। राइट, डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन dry air when there is no moisture content। डेंसिटी कम होने से स्पीड कम करती है। स्पीड बढ़ जाती है। अभी तो लिखा था फॉर्मूला v इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा इंटू पी डिवाइड बाई डी, डी इज डेंसिटी। डेंसिटी यहाँ पे कम हो रही है, ऐसा सोचने में सकता है कि वाटर इज हैवी, वाटर आ गया तो ज्यादा हैवी हो जाना चाहिए, मास बढ़ना चाहिए, डेंसिटी बढ़नी चाहिए। बट यहाँ वो डेंसिटी की बात नहीं करें, हम बात करें मोलर मास डेंसिटी, मोलर डेंसिटी। राइट, सो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में वाटर का कम है, इसलिए वहां पर डेंसिटी कम हो जाती है। इसको स्टार मार्क करके लिख सकते हैं आप। घूम गया, कोई बात नहीं, घूमना चाहिए। ओके, हमने कुछ पढ़ा था लास्ट क्लास में पहले, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव इज बेसिकली साउंड वेव। ट्रांसवर्स वेव हम किसी मीडियम में प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे? जब हम उस मीडियम को परपेंडिकुलरली हिट करें, ऊपर से हथौड़ा मारे या परपेंडिकुलरली रख देंगे, देन ट्रांसवर्स वेव इज प्रोड्यूस्ड। लॉन्गिट्यूडनल वेव इज प्रोड्यूस्ड जब हम उसको खींचते हैं अलोंग द डायरेक्शन, देन लॉन्गिट्यूडनल वेव इज प्रोड्यूस्ड। ट्रांसवर्स वेव को हम केवल और केवल सॉलिड में प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टार मार्क एंड राइट, ट्रांसवर्स वेव कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड, transverse wave can only be produced in solid लाइट ट्रांसवर्स, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये मैकेनिकल की भी बात कर रहे हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Transverse mechanical wave, if you want to be more specific, transverse mechanical waves can only be produced in solids and on the surface of liquid। या तो सॉलिड के अंदर या फिर किसी सरफेस के, किसी लिक्विड के सरफेस पर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉट at every point, right? Not in every type of medium it can be produced। समझ गए क्यों? रीजन क्या था? बिकॉज जब भी हमें वेव प्रोड्यूस करनी है तो क्या करते हैं, ट्रांसवर्स वेव के लिए हमें ऊपर से परपेंडिकुलरली हिट करना होता है। सो अगर कोई सॉलिड है तो हम सॉलिड में परपेंडिकुलरली उसको हिट कर सकते हैं या उसमें वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वो लिक्विड का सरफेस है तो बाहर से पत्थर मार के या कुछ करके हम उसको परपेंडिकुलरली डिस्टर्ब कर सकते हैं, बट अंदर से नहीं कर सकते। इफ यू गो इनसाइड, पानी के अंदर जाओगे तो जिधर डिस्टर्ब करोगे वाटर उधर ही मूव करेगा। आयरन रॉड के रबर बैंड से ज्यादा इलास्टिक होता है। Yes, iron rod is more elastic than rubber band in terms of science, in terms of physics। ठीक है, अब longitudinal wave कैसे प्रोड्यूस होती थी? Longitudinal wave is produced by yes, longitudinal waves can be produced in any medium, क्योंकि किसी भी मीडियम में हम, नेक्स्ट लाइन से लिखना, longitudinal wave can be produced in solids, liquid and gas।
solid, liquid, and gas. All three type of mediums, yes, all three type of mediums, light can be, sorry, longitudinal wave can be produced. लॉन्गिट्यूडनल वेव सबसे फास्ट किस में ट्रेवल करेगी? सॉलिड्स में, बिकॉज द मीडियम आर वेरी क्लोज एंड सॉलिड के बाद लिक्विड और लिक्विड के बाद गैस. ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांसवर्स वेव कहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, लीव इट. सो ट्रांसवर्स वेव हम उन मीडियम में प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टर्ब कर सकते हैं. इन अ सॉलिड वी कैन डू परपेंडिकुलर डिस्टर्बेंस. वाटर के सरफेस पे हम कुछ परपेंडिकुलरली बाहर से पत्थर मार के रिपल प्रोड्यूस कर सकते हैं. जब लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहीं पर भी प्रोड्यूस हो सकती है. साउंड कैन प्रोपेगेट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड में फास्टेस्ट, देन लिक्विड, देन गैस. This is for transverse wave, solid or liquid के surface पे, and the longitudinal wave can be produced in all three, solid as well as liquid as well as gas. Solid में सबसे fast, उसके बाद liquid और सबसे slow gas में. So जैसे हम sound बोल रहे हैं, the sound in air, speed क्या होती है sound की? Speed of sound in air is approximately 330, वैसे 337 होती है, but approximately 330 हम यूज कर सकते हैं speed of sound in air. In air, right? अभी जो liquid है, liquid में it travels approximately water के अंदर 1400 मीटर पर सेकेंड, right? So solid में सबसे fast, then liquid, then gas. नेक्स्ट पॉइंट, ये हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं जो 9th में था. वैसे 9th में आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है. यू हैव डन ऑल दिस इन 9th. ये थोड़ा रिकैप है. यहाँ इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है वो कुछ साउंड के बारे में है, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, मोस्टली थ्योरेटिकल. यस, प्लीज राइट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. हमें साउंड बहुत अच्छा किया. एक क्लास में हमने कहा अल्ट्रासोनिक बहुत पढ़ा है. हमने Yes. एको बताया, रिवर्बरेशन बताया. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो इसलिए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं. प्लीज राइट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. The speed of sound, ये लिख लिया. Speed of sound is maximum in solid, then liquid and in gas. Next point, the speed of sound increases with increase in temperature. Increases with increase in temperature. Speed of sound increases with increase in temperature of a gas. Yes, directly proportional to root T. केवल अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी. बेटा हम एयर की बात नहीं कर रहे हैं अभी. अभी दिस इज अ प्योर गैस. एयर इज अ मिक्सचर. इफ सपोज वी हैव सम हाइड्रोजन गैस सिलेंडर और उसके अंदर हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला. सो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन अ गैस. नेक्स्ट लाइन से, in presence of humidity, in presence of humidity slash moisture, in presence of humidity slash moisture, टेम्परेचर में डिक्रीज होता है तो पार्टिकल्स साथ साथ में आते हैं, तो साउंड को और तेज से ट्रैवल करना चाहिए. ये चलते ही है. तो हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन में इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, वो तो हाइड्रोजन के गैस मॉलिक्यूल्स हैं. जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, ज्यादा फास्ट मूव करेंगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे एंड दे विल ट्रैवल इट फास्टर. अच्छा, उनकी एनर्जी बढ़ रही है. हाँ, गैस के मॉलिक्यूल्स जब स्पीड बढ़ाएंगे तो फास्टर कोलाइड करेंगे
they will move faster. Speed of gas molecule is proportional to the temperature. अब जब water आ गया तो उसमें रोल moisture का है, because moisture content ज़्यादा है. So water is traveling. Water is the main moisture is the main reason for the fast travel. So कुछ लिखा शायद with the statement क्या लिख रहे थे? अभी कुछ बोला ना मैंने, with the presence of. उसके बाद next statement ही बोला, लिखो in the presence of humidity slash moisture. In the presence of humidity slash moisture in a gas bracket में moist air, humid air, the speed of sound increases. Speed of sound increases because density of moist air टेम्परेचर से लेना देना नहीं है. टेम्परेचर का अलग फैक्टर है, इसका अलग फैक्टर है. बट जब हम विंटर में देखते हैं तो टेम्परेचर की वजह से कम हो रही है, बट इस मॉइस्ट एयर की वजह से बढ़ रही है, और जो बढ़ रही है वो कम होने से ज्यादा है. इफेक्ट ऑफ मास डेंसिटी इज ओवरकमिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर से अगर 10 मीटर पर सेकंड कम हो रही है तो बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मास 40-50 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है. तो ओवरऑल इट इज अ इंक्रीज. Right? It increases with the presence of moisture or humidity in gas bracket में moist air. Next line से लिखना in rainy season slash winter. Speed of sound in rainy season slash winter. Speed of sound. Speed of sound increases even after decrease in temperature. Even after decrease in temperature. Temperature कम होने के बावजूद भी speed बढ़ती है because the moist air effect dominates. Because the increase in speed due to moisture is greater. हो जा रहा है? राइट. वो जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा. टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करने पे स्पीड कम होगी. लेकिन यहाँ पर लोचा एम के साथ भी हो गया है. मॉइस्चर आने से एम बहुत कम हो जाता है, टेस्टी बहुत कम हो जाती है. तो इसके बढ़ने से बढ़ रहा है, इसके कम होने से कम हो रहा है, और एम के कम होने से बढ़ रहा है. सो जो एम की वजह से इफेक्ट आएगा, दैट इफेक्ट डोमिनेट्स द टेम्परेचर इफेक्ट. डेंसिटी कम होने से, मॉइस्चर के आने से मास कम हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिप्लेस बाय वाटर. मास कम हो गया, डेंसिटी कम हो गई. मास कम होने से स्पीड बढ़ती है, टेम्परेचर कम होने से डिक्रीज होती है. तो दोनों चीजें हो रही हैं. विंटर में टेम्परेचर से डिक्रीज भी हो रही है और मॉइस्चर की वजह से इंक्रीज हो रही है, बट इंक्रीज वाला इफेक्ट डिक्रीज वाले से ज्यादा है. ओवरऑल इट विल ऑलवेज इंक्रीज इन द विंटर और रेनी सीजन और इन मॉइस्ट एयर. करेक्ट? राइट. अब एक अलग सा छोटा सा फॉर्मूला अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस. ये तो साउंड के लिए हो गया. साउंड वेव इन लिक्विड एंड सॉलिड एंड गैस. हमें अभी सिर्फ गैस या एयर के लिए पढ़ना है. On increasing temperature, the speed of sound will increase in a particular type of gas, but if it is in a moisture or moist gas, तो दोनों के इफेक्ट का हमें क्यूमुलेटिव रिजल्ट देखना पड़ेगा. इट में इंक्रीज, इट में डिक्रीज, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सी गैस में क्या इफेक्ट हो रहा है मॉइस्चर का. ओके. नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव. Speed of transverse wave in any string or in any wire. Transverse wave में कैसे wave produce करते हैं? By giving a jerk, and that is root T by mu. So this is a string. String को अगर हम एक तरफ से fix कर दें और दूसरी तरफ से tension produce करने के लिए we hang some mass. mg नीचे pull कर रहा है. Because of that mg there is a tension force, and because of that tension force जितनी taut ये रस्सी होगी, जितना ये string taut होगी, उतना ही ज्यादा, उतना ही faster इसमें string speed, इसमें wave travel करेगी. इसलिए गिटार को पहले टाइट करना पड़ता है स्ट्रिंग को,
ये टेंशन के प्रोपोर्शनल है। टेंशन का मतलब ये कितना टाइट है वो स्ट्रिंग, जितना टाइट स्ट्रिंग होगी उतना ही फास्टर स्पीड ट्रेवल करेगी। मोर टेंशन मोर विल बी द स्पीड। इसलिए गिटार की स्ट्रिंग को पहले टाइट करते हैं। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज नॉट डेंसिटी, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। बेटा ये एक छोटा सा अरेंजमेंट है, गिटार की जगह पे यहाँ रस्सी फिक्स करी, पुली के ऊपर लगाया, टेंशन कैसे बढ़ा रहे हैं, नीचे वेट बढ़ा के, वेट बढ़ाते जाओगे P = mg, क्योंकि ये वेट गिर नहीं रहा है। दिस ब्लॉक इज स्टेशनरी, ऊपर टेंशन नीचे mg, जितना टेंशन यहाँ पे आएगा उतना टेंशन हर जगह पे होगा। सो अगर हमें टेंशन बढ़ाना है तो हम बस इस नीचे की तरफ वेट बढ़ाते जाएंगे। व्हेन मास इज इंक्रीज वेट इज इंक्रीज, टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। In the transverse wave, or increasing temperature, the speed increases, or increasing the mass density, linear mass density, यानी अगर हमने उसकी लेंथ सेम रखी और मास बढ़ा दिया तो स्पीड कम हो जाएगी। That is the formula for linear mass density. लेंथ के बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मास भी बढ़ेगा सेम रेशियो में। लेंथ डबल करोगे यहाँ से बढ़ा तो मास भी डबल हो जाएगा, m/l will become constant again. तो इस साइन को बोलते क्या है? किस साइन को? ये नीचे पर म्यू डेंसिटी यूज करते हैं, रिफ्लेक्टिवनेस के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हमने यूज किया है मास पर यूनिट डेंसिटी के लिए। कौन सी चीज? मास पर यूनिट लेंथ, यस। हाँ, क्योंकि only there are 26 letters और क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए सेम सिंबल रिपीट करना पड़ता है। या नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने, रिफ्लेक्शन जैसे लाइट का था, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिस्टर कबीर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कैसे होता है? व्हाट इज डिफाइंड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर इट। So reflection or refraction? Reflection, L. So reflection, sir, like when it bounces from a plane surface, sir. Plane surface, for example, mirror, when it bounces back, and the angle of incidence is equal to the angle of reflection, and the incidence angle of incidence, angle of reflection, and normal are on the same plane. Okay, right. Reflection is when a wave is incident on a medium boundary. Some part of wave is reflected back and some part is transmitted again, right? And it always follows the law of reflection, is right? When a sound wave strikes a surface, bracket में wall, metal sheet or plywood, perpendicularly it is reflected back. Perpendicularly it is reflected back in the same medium. It is reflected back in the same medium. This phenomena is called reflection of wave. This phenomena is called okay, yes. क्या था स्टेटमेंट दूसरे पढ़ना? When a sound wave is reflected back from a surface
such as wall, metal sheet, plywood, it is reflected back into the same medium called as reflection. तो जो लाइट के लिए था वैसे ही कुछ साउंड के लिए, बस ओनली डिफरेंस क्या है, लाइट के केस में इट हैज टू बी ए पॉलिश्ड सरफेस और मिरर, यहाँ पे किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है. So next point, the reflection of sound. Yes. Yes. बट अगर लाइट हम किसी दीवार में मार रहे हैं वो पॉलिश नहीं है तो लाइट आगे कितना देगी वो डिस्पर्स हो जाएगी, इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, वो आपके पास वापस नहीं आएगा. Disperse. It will not be going back. Only when this polished, this वापस होगी. वरना उसको बोलते हैं diffuse reflection. कुछ नहीं आती है बट हर तरफ diffuse हो जाती है. Irregular reflection. हाँ, correct, right. So रिफ्लेक्शन ऑन. सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है. yes. So पूछा कुछ? सर आपकी वॉइस लो आ रही है. मेरी वॉइस नहीं आ रही. लो आ रही है. Okay, Shrey, now is it coming? यस सर. The reflection of sound does not require a polished surface, does not require a polished surface like reflection of light. और हमने एक बार पहले पढ़ रखा है ऑलरेडी कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब इज बिहेविंग लाइक ए पार्टिकल. पार्टिकल लाइक नेचर एंड वेव लाइक नेचर कैसे था डिफरेंस? if the size of medium is very large as compared to wavelength. So next point, the size of reflecting surface must be quite larger than the wavelength of sound. Quite larger than the wavelength of sound wave. This is the basic condition. रिफ्लेक्शन हर जगह हो रहा है. हम अभी बात कर रहे हैं, मेरी आवाज यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो रही है, वॉल से भी आ रही है. इट्स कमिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, बट फिर भी हमें दो अलग अलग साउंड सुनाई नहीं पड़ते बिकॉज इट इज कमिंग थ्रू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट एंड इट कम्स थ्रू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट. ये पुराने वाले साउंड के ऊपर ही सुपर इम्पोज हो जाती है और हमें साउंड ज्यादा सुनाई पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल इज स्पीकर फोन. All the speakerphone concept is the same. The same sound wave getting reflected again and again and superimpose and make a intense sound. Bouncer. इको पे आते हैं. अभी हम इको की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की. What is reflection of sound wave? जैसे मतलब अगर आप बोल रहे हो कि हाँ आपकी आवाज यहाँ से चढ़ के वहां पे आ रही है वापस और वो उसी में ऐड हो जाए. एकदम परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बिकॉज दैट टाइम गैप इज वेरी लेस. वो पिछले वाले साउंड को ही थोड़ा सा इनहेंस कर रही है. एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द स्पीकर फोन्स. अगर बड़े से उसको बोलो तो आपका फिर एको है. जब हम काफी बड़े से हॉल में हैं और फिर बोलते हैं तो वो डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि वो वापस आने में बने होते हैं ताकि वो साउंड रिफ्लेक्ट हो. ओके सर्कुलर शेप में, राइट. कैरी ऑन. लिख रहे थे आप, बीच में ब्रेक कर देते. क्या था स्टेटमेंट? Size of the reflecting surface must larger than the wavelength. Then the wavelength of the sound. Yes. सर तो वो 0.2 सेकंड वाला 0.1 सेकंड वाला गैप
आते हैं बीच में। हम दो अलग अलग साउंड को तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब उनके बीच में 1/10 सेकेंड से ज्यादा का गैप है। एक साउंड सुनाई पड़ने के बाद if the second sound is coming in less than 1/10 of a second, तो हम उसको अलग नहीं, यही हो रहा है, आप बोल रहे हो 1.0.1 सेकंड कम में वापस आ जाती है, and that is why it is not appearing as a different sound. रोकने की यस ओके। तो रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर होता है? ऑल दी स्पीकर फोन्स, लाउड स्पीकर। एक पुराना लाउड स्पीकर ऐसे होता था कुछ कोनिकल शेप में, वो वगैरह कैसे बोलते हैं, उसमें भी सेम है। जो हम बोल रहे हैं वो उसके सरफेस से बार बार रिफ्लेक्ट होता है एंड इट गेट्स सुपर इम्पोज्ड, इट मेक्स दिस साउंड क्वाइट इंटेंस। अभी जो बोल रहे हैं वो साउंड हर डायरेक्शन में जाके डिस्पर्स हो जाती है। सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं करता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज कर देता है, बिकॉज जो वेव हमने एक प्रोड्यूस की वो अभी हर तरफ डिस्पर्स हो रही है, कोई पीछे उसकी तरफ भी वेव जा रही है जिसको जरूरत नहीं है सुनने की, राइट? या वो इस तरफ जाके अब्सॉर्ब हो जाती है, सर हम आगे बोलते हैं पीछे कैसे जाते तो हर तरफ जाती है वेव, एयर हर तरफ है, हैं? हर जगह वाइब्रेशन हो रहा हर जगह वाइब्रेशन होने लग जाता है, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट टू पॉइंट मीडियम। जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन करना होता है तो हम इसी साउंड वेव को है। फोन बोलते हैं जिनमें एक धारा कन्वर्ट करते हैं। हाँ, बचपन में खेलते थे जो, वो इसीलिए होता है, उसमें केवल उसी को सुनाई पड़ेगा जिसके कान में आप खुसफुस करना चाहते हो। टू बॉक्स वो स्ट्रिंग के थ्रू जाती है, बिकॉज स्ट्रिंग इज रिलेटिवली डेंसर मीडियम, रिलेटिवली सॉलिड देन एयर, उसमें स्पीड, साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो जल्दी से पहुंच जाती है और उसके सहारे पहुंच जाती है। मुझको लगता है पहले ही कैसे होता है अभी भी हम बड़ों को जो मोबाइल से बात करते हैं वो भी सेम सीन है। क्या? जब बोलते हैं, हाँ, जैसे अभी ये जूम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो उसके अंदर एक डेटा एन्क्रिप्शन के फॉर्म में इज गोइंग टू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ऑप्टिकल सिग्नल, और फिर वो जो अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसके अंदर वो एक पॉइंट टू पॉइंट यानी एक वायर के थ्रू जा रही है टू ऑल दी ब्रॉडकास्ट स्टेशन, लाइक इन मुंबई फॉर कबीर एंड लाइक फॉर श्रेय इन गुड़गांव, राइट? द डायरेक्ट साउंड वेव इज नॉट रीचिंग देयर। जो हम बोल रहे हैं वो इसके अंदर का रिसीवर अब्सॉर्ब कर रहा है और उसी वेव लेंथ, उसी फ्रीक्वेंसी की वेव को एक सिग्नल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। उसका मतलब माइक्रोफोन नहीं, वो तो यहाँ है, फिर इसने ट्रांसमिट किया आसपास जो भी नियरेस्ट ब्रॉडकास्ट स्टेशन है, मोबाइल का टावर है, समझ सकते हो सामान्य भाषा में, और उसके थ्रू वो ऑप्टिकल फाइबर अंदर 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 केबल्स होते हैं ना मोटे मोटे जो बिछाते रहते हैं सड़क खोद के, हाँ, उसके अंदर से वो पास होती है एंड जहां तक ले जाना है वहां तक वो पहले उस, और श्रेय को दोनों को एक टाइम because that is propagating in the form of electromagnetic wave light, जो कि 3 × 10⁸ की स्पीड से होती है, इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा कुछ माइक्रोसेकंड का, वो जूम अपने हिसाब से कर लेता है। Zoom means all these programs। अगर आपने कभी 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 पहले किसी जमाने में, आपके जमाने से पहले आपने नहीं देखा होगा, टेलीग्राम नहीं, टीवी पर ही 2 अलग अलग चैनल आते थे, दूरदर्शन एंड डीडी मेट्रो। तो अगर आपका मैच, सपोज सम लाइव मैच इज देयर ऑन बोथ दी चैनल, वो डीडी नेशनल पे 4-5 बॉल पहले चल रहा होता था, मतलब 2.4 ओवर्स इन दी डीडी नेशनल, डीडी मेट्रो पे अभी दूसरा ओवर स्टार्ट होने वाला हो, because of the difference in speed according to the bandwidth, according to the channel used। जैसे पहले कभी इंटरनेट कनेक्ट करते थे, डायल अप कनेक्शन, सर वो अभी भी कभी कभी किसी किसी चैनल में होता है ऐसा। अभी भी होता है किसी किसी चैनल में, वो तो थोड़े चैनल की, अब बहुत सारी ऐसे एल्गोरिदम्स हैं कि वो सारे आपस में मर्ज कर देते हैं
एंड दे सिंक इट, उनको सिंक्रोनाइज करके साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। तो चाहे आप किसी भी चैनल को देखोगे मोस्टली इट इज सेम, केवल डिफरेंस अभी है वो SD और HD में है। आप स्टार स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख रहे हो और स्टार स्पोर्ट HD में देख रहे हो, कुछ 10 नहीं टाइमिंग का डिफरेंस। ब्रॉडकास्ट पहले मिलेगा, आप उसमें 2-3 बॉल पहले हो चुकी है, विकेट गिर चुका है, और दूसरे में आपको अभी नहीं पता, राइट? वो डिफरेंस क्यों है? बिकॉज द स्पीड ऑफ वेव इज डिफरेंट। सर नासा के साथ भी यही होता है। सर रिसेंटली उन्होंने अपना मार्स पे भेजा था तो 7 मिनट्स तक उन्हें वेट करना पड़ा। तो जब उन्हें मिला कि वो पहुंच गया है तो पहले से 7 मिनट तक वहां पर लैंड कर चुका था, फिर इतना दूर है तो वापस आना। राइट, जैसे जो भी हम लाइट देखते हैं, जो भी हम स्टार देखते हैं, वो भी हम 8 मिनट पुराने देखते हैं। हाँ, तो स्टार भी तो स्टार्स तो कितने करोड़ों पहले ऐसी लाइट दिखते हो लाइट हो गया वो ऐसे स्टार तो दिखते जो फट चुके हैं। हाँ, जो खत्म हो चुका दिख रहा है अभी, ये लाइट चली थी वो अभी पहुंची, राइट? तो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, कम बैक। अभी हम आते हैं साउंड के लिए। सो साउंड जब किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो करना होता है तो उसके लिए हर तरफ से कुछ रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, दैट इज द रिफ्लेक्टर, दैट्स द स्टूडियो कॉल्ड एज स्टूडियो सेटअप। एब्जॉर्ब नहीं करता है, रिफ्लेक्ट करके उसी को एनहांस कर देता है, सो दैट द साउंड क्वालिटी इज इंक्रीज्ड। ठीक है, और दूसरा होता है कुछ साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग का मतलब है absorption of sound. Right, so देखो नेक्स्ट लाइन से, the reflection of sound is used in speakers, because there's a power cut, and I think is used in speakers कर दो ना, हो जाएगा। Right, the reflection of sound is used in speakers, sound box, speakers slash sound box, and लाउड स्पीकर्स। ठीक है, एक ही बात है। एंड मेगाफोन, जो अच्छी अच्छी कैटेगरी के माइक आते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, उनमें ये डिफरेंस होता है, उसमें रिफ्लेक्टर ज्यादा लगे होते हैं। ऐसा एक बड़ा साइज का होता है, व्हेन यू स्पीक वो रिफ्लेक्ट करके इट ऑलरेडी इनहेंसेस द साउंड क्वालिटी। तो रिफ्लेक्शन से हमेशा इको नहीं होती, रिफ्लेक्शन से हम सेम साउंड को ही देख रहे होते हैं या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम। वॉल्यूम कम और हाई करते हैं तो जब हम वॉल्यूम कम करते हैं क्या सर आप म्यूट हो।
Sir, इसके बाद में हमारा ये कैरियर करते हैं। हाँ सुन लेते हैं, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, आपके डिस्टर्बेंस हो चुके हैं. Your question is that when we increase or decrease the volume of sound, what is that? अभी आप मेरी वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो? नहीं, because it is going directly in the form of sound wave to you. But they can. Online people can. Why? Because जो साउंड वेव है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, और वो कितना करंट के फॉर्म में उस चैनल के थ्रू आगे पास हो रहा है, दैट यू कैन कंट्रोल. अगर हम कम आवाज में कम जैसे इसकी स्पीड कम करते हैं, क्या करते हैं? ऐसी चीज है कि अगर What is the regulator of fan does? Increases or decreases the resistance. Amount of current is decreased. Amount of current decrease होती है तो पावर डिक्रीज हो जाती है, और वो मोटर की स्पीड डिक्रीज हो जाती है. ये लॉजिक इसी में भी लगेगा. But I was used to think कि अगर AC से स्पीड में जा रहा है तो उतना ही मिलेगा अगर 28 पे चला रहा है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नहीं, जब भी आप इसको चेक करोगे इट विल ऑलवेज बी द Being a science student, you should be inquisitive enough. उसमें हमेशा रेंज लिखी होती है. अभी तो थोड़ा आई साइड वीक है, you have to check it next time. ये करीब 2500 to 5000 वॉट के बीच में ऑपरेट करता है. दैट मीन्स आपने क्या टेम्परेचर सेट किया है, हाउ मच ए गैस कूलिंग गैस इट इज पंपिंग पर सेकेंड पर साइकिल, उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना हो रहा है. इसलिए ऑप्टिमम इज 25 to 27. ओके, समझ गए? पढ़े आगे. अभी कोई सारे डाउट क्लियर? रिफ्लेक्शन में हमारे साथ भी साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है आसपास, बट हमें वो अलग अलग नहीं दिखाई पड़ता या सुनाई पड़ता, बिकॉज इट इज कमिंग वेरी क्लोज इन लेस देन 0.1 सेकेंड. अगर हम किसी बहुत बड़े से हॉल में हैं, मूवी थिएटर में हैं, या किसी हिल स्टेशन पे हैं जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर क्वाइट फार, तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो हमें सेपरेटली सुनाई पड़ती है आफ्टर द फर्स्ट साउंड हैज स्टॉप्ड. राइट? व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू शाउट, वो साउंड खत्म हो चुकी है और उसके बाद फिर से वापस आई, देन यू get the same sound after reflection. That is called echo. If it is joining the same sound, like in this our case, that's not called echo. So please write echo की definition. When sound is produced, in sound word after reflection from distance. After sound. very good. आप वो लिख सकते हैं. When sound is produced in a large building slash, उसमें कॉपी कर लो, बट भावनाएं सही होनी चाहिए. When a sound wave is produced in a large building slash near a hill, the sound wave is reflected. Sound wave is reflected from distant surface and observed as a separate sound, after the first sound has stopped. समझ नहीं आया? डेफिनेशन पढ़ो. क्या लिखी है आपने डेफिनेशन? पढ़ो डेफिनेशन में लिखा हुआ है. जब हम किसी बड़े से लार्ज बिल्डिंग में है या किसी हिल स्टेशन पे, हिल के पास है, मतलब हिल स्टेशन नहीं, पास में कोई हिल है, हमने कुछ बोला समथिंग, सो इट इज गोइंग. अब किसी ऑब्जेक्ट से जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है या सरफेस है, वहां से रिफ्लेक्ट होके जब तक ये वापस आ रही तब तक पहले खत्म हो चुकी है.
बट ये बहुत पास में है, दिस इज वेरी लेस। अभी मेरे से ये वॉल कितने डिस्टेंस पे है? हार्डली 2-3 मीटर्स। मैंने एक्सपीरियंस करा है, जैसे एक छोटा सा टनल है, टनल में बैठी हूँ, वो जो है टनल लंबी होगी, टनल के एंड से एक और है। इट इज दूर वाली केसेस में ही से बैठो। या राइट। और वो कंडीशन भी अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर दोनों साउंड के बीच का टाइम डिफरेंस 1/10 सेकेंड से कम है, देन इट विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड एज टू सेपरेट साउंड। वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। यस एको हो रहा है, वो भाई वॉक के साइड एक बार होना चाहिए ना, तो ऐसे के मैंने मूवी से देखा है, 2-3 बार सेम कि आपने भी कोई एक सिग्नल प्रोड्यूस नहीं किया ना, यू हैव स्पोकन। हमने बोला, वो हमने 4 बार एक नोट नहीं बोला आपने, आपने एक साउंड प्रोड्यूस किया which has many frequencies, many vibrations. वैसी चीजें तो पैरेलल मिरर्स के बीच में एक लेजर डाली तो बार-बार बाउंस ऑफ होके मल्टीपल को फॉर्म करता है, वैसी Right? Okay. So when it is a quite far distance is d जाने में और d वापस आने में, अगर ये टाइम 1/10 सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा, then only we will get the echo. बोलो कुछ क्या लगा? 2d. Yes. 1/10 सेकेंड से ज्यादा. Right. So ये distance, प्लीज इसको लिख लो नेक्स्ट लाइन से। if टाइम इज 1.1 सेकंड से कम, तब हमें एक मैसेज आ जाएगा ना। लिखो पहले, कुछ बोल रहा हूँ मैं यार। if the time difference between the two sound is greater than 1/10 second, then only echo is heard. Echo is heard. 1/10, right? 1/10 or 0.1, same thing. और इसका रीजन क्या है कि जब भी कुछ साउंड हमारे ईयर पे जाती है तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, ईयर ड्रम, एंड दैट ईयर ड्रम स्टॉप्स वाइब्रेटिंग आफ्टर 0.1 सेकेंड। तो फिर तो हम हमें टाइम में के बाद निकालेंगे अभी। यस यस अभी निकालेंगे। होल्ड दिस इज डी और डी वापस आने में। सो ये जो टाइम लगेगा बिटवीन द ओरिजिनल साउंड, डी जाने में, डी वापस आने में, वेयर वी इज द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इज यूजुअली 337, बट हम 340 ले लेते हैं उसको। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, यूजुअली एट द रूम टेम्परेचर। तो ये टाइम होना चाहिए कितना? ग्रेटर देन 1/10 सेकेंड। D should be greater than V/20. So 340/20 means 17 meter. सर मैसेज 330 लेते हैं हम। 337 एक्चुअली, 330 नहीं है, वो तो कैलकुलेशन के लिए कहीं कहीं ऊपर नीचे कर लेते हैं। इस 337 है 25 का 27 होगा, थोड़ी बढ़ जाएगी। 340 इज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। राइट? कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 17 मीटर। तो यहाँ पे कोई भी वॉल अभी 17 मीटर नहीं है, इसलिए हमें इको सुनाई नहीं पड़ती है। वो 0.1 सेकेंड क्या है? हमारे ईयर ड्रम के ऑसिलेट करने का टाइम। यस बोल रहे हो एनर्जी है जो पास ऑन हो गया, अगर इतनी दूर डिस्टेंस अगर हम चाहते हैं बहुत जोर से बोलना है, ऑब्वियसली चिल्ला के ही बोलते हैं जब भी इको सुननी है अपनी, तो यू हैव टू शाउट इट इंटेंस लाउड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी चाहिए? 17 मीटर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये लिखने के बाद ये 1/10 सेकेंड इज द टाइम, मिनिमम टाइम बिटवीन द टू साउंड विच वी कैन परसीव। 0.1 सेकेंड तक के लिए हमारे ईयर ड्रम वाइब्रेट करते रहते हैं आफ्टर अ साउंड इज हर्ड। अगर उसी वाइब्रेशन में अगला ऐड हो गया, देन वी विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू साउंड। राइट? Yes, so that's why the minimum time difference should be 1/10 second. इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए कम से कम 17 मीटर डिस्टेंस पे।
Right from the next. Probably. 70 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और बाकी सारी कंडीशन है कि हाँ वही समझ मैं मेरा स्टेटमेंट वही था नेक्स्ट। अगर आसपास और कोई साउंड नहीं है जो आपकी साउंड को डिस्ट्रैक्ट करे या फिर डिस्ट्रॉय ना कर दे तो सुनाई पड़ेगा। इसीलिए किसी अकेले हॉल में आपको सुनाई पड़ता है। इफ देयर इज अनदर साउंड, यू आर शाउटिंग, समवन इज शाउटिंग, बोथ वेव्स आर अपोजिट डायरेक्शन, दे कैंसिल आउट ईच अदर। लौट के आई बट इतनी कम इंटेंसिटी की आई कि यू आर नॉट एबल टू गेट इट। पहाड़ों पे या किसी हॉल में, बड़े से किसी ऑडिटोरियम में, किसी प्रेयर के लिए किसी टेंपल में, ठीक है? ओके, वेरी गुड। सो प्लीज राइट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। टू हियर एन इको डिस्टिंक्टली, ये करने के बाद, ये हमने कर लिया है, इसके बाद लिखना है टू हियर इको डिस्टिंक्टली द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन एयर, the reflecting surface in air should be at least 17 meter away, should be at least 17 meter away from the listener। 17 मीटर की डिस्टेंस पर अगर मिनिमम है तभी हमें अपनी इको वापस सुनाई पड़ेगी एज अ 2 सेपरेट साउंड, अदरवाइज वो पुराने वाले साउंड में ऐड हो जाएगी एंड वी गेट अ कॉन्टिन्यूअस साउंड। ओके अब जैसे जो टेंपल है या फिर चर्च, उसमें ऊपर कुछ ऐसा बना देते हैं डोम, उससे क्या फायदा होता है? बस लास्ट इसका पर्पस क्या होता है ऊपर डोम? ताकि वो फ्रीक्वेंट वाइब्रेट हो, वाइब्रेट नहीं रिफ्लेक्ट हो, और रिफ्लेक्ट होके वो ज्यादा देर तक रहे। It should persist for a longer period of time। साउंड का मतलब एनर्जी रहे, एनर्जी रहेगी आप जाओगे, आपको अच्छा फील होगा। You feel better when you go to temple or some any sacred place। उसका रीजन भगवान भी है, थोड़ी मतलब साइकोलॉजिकल भी है और साइंस भी है दैट यस, और वो घंटी का भी शेप ऐसे ही होता है। और एक जो बुद्धिस्ट कल्चर में घंटा बजाते हैं बड़ा सा, उसमें बाहर देखा कभी? I belong to a place called Shravasti, my native place। Shravasti सुना? नहीं? It's in UP only, near the Nepal border, जहाँ पे महात्मा बुद्ध stayed for almost 15 years। एक डाकू था अंगुलीमाल, सुना ना? वो जिसको मारता था उसकी उंगली काट के अपने माला में पहन लेता था, वो वहीं पे था। उसको सही किया था, वहीं पे ज्ञान दिया था महात्मा बुद्ध ने इन श्रावस्ती। तो वहां पर इंडिया के टेंपल नहीं है, देयर आर 2 टेंपल फ्रॉम कंबोडिया, चाइना, जापान, और वहां पे 28 मीट्रिक टन का घंटा है, ऑलमोस्ट लाइक दिस रूम साइज। So you said कितना बड़ा? So you said India यूपी कब से सेंट्रल इंडिया में है भाई? कितनी ज्योग्राफी पढ़ी है आपने? चलो भाई मैं इसको ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ थोड़ी सी। बाय बाय।